Hello friends, welcome back to the channel. So as you can see, today we have the second part of the Indo-China dispute video. Those aspirants who have not watched the first video, I'll share the link in the description box. You can have a look at that particular video. Please watch part 1 of the video so that you can have a better understanding about the western part of China and the dispute in the Ladakh region of India. Ardagh-Johnson line is what we say as the line of demarcation between India and China, whereas China accepts the Macdonald line. So similarly, the dispute is also there in the eastern part of India, or we can say the part of Tibet. So the disputes here is about McMahon line which was the line proposed by India as well as the British India, along with the discussion with Tibet and China. The line was proposed after a long discussion in the year 1913. It went till 1914, and in 1914 it was signed. McMahon line was signed, which demarcates the area, the territories between Arunachal Pradesh and Tibet, which China claims as its own. So McMahon line was drawn. McMahon line was proposed in the year 1914. It was proposed in the year 1914 after a long discussion in 1913. There were three parties which participated in this discussion. It included the British India, the region of Tibet, and China. Though China did not accept it, whereas the rest two regions accepted this line. So this McMahon line, as we can see, is the clear demarcation between the Tibet, which is occupied illegally by China. On one side there is a border with Bhutan, there is a state of Sikkim. If we see in the regard of India, we have Arunachal Pradesh, the whole area of Arunachal Pradesh, which out of which around 85,000 square kilometer is taken by China and is ruled by China illegally. So after that we have the state of Assam, we have Nagaland here, Manipur, Mizoram, all of these states bordering with Myanmar, and Tripura, which is bordering the country of Bangladesh, and Meghalaya, which also borders with the country of Bangladesh. So this is about the McMahon line. So McMahon line was proposed by Lieutenant Colonel McMahon, who was a diplomat also. So he drew a line demarcating the territories of Tibet with India. China declined this line, as they said that Tibet is a part of China and it is not able to take its own decision. It can't take its own decision as it is not independent. So the government which was functioning in Tibet was called a government in exile by Chinese authorities at that point in time. Now this is all about the mappings of the region. This all about is about the map of that particular region, in which the McMahon line is considered as disputed by Chinese, whereas McMahon line was signed in the year 1914 as per the norms. It was accepted by British India further in the year 1938, and it is being represented as it is. So the issue is this line, where China does not accept this line. The historical border of Arunachal is always considered with the areas of Himalayas, because these areas is of Himalayas, and on one end there is Tibet, on the other there is Arunachal Pradesh. China argued that McMahon line is illegal and the government which was in Tibet was a government in exile and it can't take its own decision. This is what China quoted way back in the year 1914 and did not accept it, McMahon line. Though the region of Assam always had great Indian dynasties, be it Mauryan Empire or for that matter the Gupta's empire, the Chola's empire, they ruled in the territories of Assam and expanded till Arunachal Pradesh. In 1954 there was an agreement signed between the Indian Prime Minister and the Premier of China, that was Zhou Enlai. So both of them agreed on 5 principles or 5 virtues, which was later configured as Panchashil agreement. So what are those 5 principles of peaceful coexistence? We are going to have a look at all those 5 points, and further we will elaborate the relations between India and China and the disputes between India and China thereafter. So after the end of 1954, when the Panchashil agreement was signed, after 8 years China betrayed the agreement, and in 1962 they attacked the territories of Arunachal Pradesh, which further led to the Sino-India War of 1962. In 1962 war, the status quo was changed. China illegally occupied the territories of Arunachal Pradesh due to some issues and some leadership issues obviously.
So there were some leadership issues as well as some military issues which forced our Indian army to back out from that region, as we were unprepared for that kind of big trial. So we'll have a discussion over it also in this particular video. So let's start. Now let's have a look at the 5 principles of the peaceful coexistence, या जिसको हम बोलते हैं पंचशील समझौता, पंचशील अग्रीमेंट. एक बार समझते हैं पंचशील अग्रीमेंट क्या है और किस चीज़ की बात करता है. सो पंचशील अग्रीमेंट, एज द नेम सजेस्ट, 5 वर्च्यूज़ हैं. 28 अप्रैल 1954 को ये साइन किया गया था एट पीकिंग. दैट मीन्स बीजिंग में ये साइन हुआ था बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द प्रीमियर ऑफ चाइना जाओ एनलाई. इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए थे, जिसमें पहला पॉइंट कहता है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन. कोई भी साइड अग्रेसिव नहीं होगी, म्यूचुअली नॉन अग्रेशन शो करना है. सेकेंड पॉइंट सेज म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वालिटी. दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल इक्वालिटी और बेनिफिट रहे. द थर्ड पॉइंट सेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी. दोनों देश एक दूसरे के सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की इज्जत करें. नेक्स्ट पॉइंट सेज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स. ना हम उनके इंटरनल मैटर में कुछ हस्तक्षेप करें, ना वो हमारे में करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस. एक साथ मिलकर को एग्जिस्टेंस में दोनों रहें. तो ये 5 पॉइंट्स कहते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट, या हम कहें पंचशील समझौता जो था, 5 वर्च्यूज. और इसी के बेसिस पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था. चीन ने एग्जैक्टली 8 साल बाद हमें धोखा दिया और पंचशील अग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया. अब क्या हुआ 8 साल बाद, अब ये समझते हैं. 8 साल बाद हुआ 1962 का साइनो इंडिया वॉर. ये युद्ध 2 जगहों पर लड़ा गया था. एक तो लद्दाख के इलाके में और दूसरा तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाके में. लद्दाख के एरिया में हमें लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंवाना पड़ा, वेराज लगभग 85,000 से लेकर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश का हमारा इस लड़ाई में चला गया. वजह क्या रही? तो बहुत बड़े लेवल पर अगर हम देखें, गलतियां जो हुई हैं वो लीडरशिप एज वेल एज मिलिट्री की भी बात उसमें नहीं सुनी गई थी. तो हमारे पीएम को लगता था ऐसा कि चीन हमें धोखा नहीं देगा, बट चीन ने यहाँ पर धोखा दिया और बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया. बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हमारे एंड पर यहाँ पर रही थी. वजह क्योंकि हमारे पास मॉडर्न वॉरफेयर नहीं था, हमारे पास मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक नहीं थी. जो हमारे राइफल्स थे .303 कैलिबर के बहुत पुराने थे, वेराज चीन के पास उस टाइम पे AK-47 था. हमारे पास हमारी आर्मी को स्नो बूट्स नहीं मिले थे, अंडर क्लॉथिंग थे. इवन कई जगहों पर ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों को मारने के बाद उन्हीं के वेपन्स से उन पर अटैक किया. तो दैट वाज द कंडीशन, बट स्टिल बहुत जाबाजी के साथ लड़े 1962 वॉर में. लेकिन बीट्रायल, क्योंकि चीन ने हमें धोखा दिया जिसका कि अंदाज़ा नहीं था, और ऑब्वियसली लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर हम कहें हमारे इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर ये था, प्लस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ आर पीएम की चीन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया और उसका हमने खामियाजा भुगतना पड़ा. नॉनदलेस 1967 में इंडिया ने काफ़ी हद तक इसकी बराबरी करने की कोशिश की. 1967 में फिर से चाइना ने एग्रेशन शो किया था और नाथुला और चोला पर उन्होंने अटैक किया. नाथुला एंड चोला दोनों जगहों पर बहुत बुरा
हाल किया गया था यहाँ पर चीनी सेना का और इंडिया ने इसमें विक्ट्री पाई और उसके बाद फिर चाइना का अग्रेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था। फिर चाइना ने हमसे लड़ने की काफ़ी हद समय तक कोशिश नहीं की, रुक रुक कर वो इंट्रूड ज़रूर करते थे टेरिटरी में। जैसे अगर हम 1962 वॉर की बात करें तो इसमें तो लगभग वो 20 किलोमीटर हमारी टेरिटरी में घुस गए थे। बाद में फिर स्टेटस को रिस्टोर उनके अकॉर्डिंगली रहा, बट हमारे तरफ से उन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी हमारी सीड कर ली थी। 1962 के वॉर में ही चाइनीज़ पीएलए ने जॉन दाल्वी को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था अलॉन्ग विद 25 अदर्स। सो जॉन दाल्वी जब 8 महीने चीनी आर्मी के बीच रहकर जब वापस लौटे तो उन्होंने एक बुक लिखी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, जिसका नाम था हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर में उन्होंने लीडरशिप से लेकर मिलिट्री यानी पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर मिलिट्री लीडरशिप सब जगहों की बात कही है और एक बिल्कुल अपना जो उन्होंने देखा वो सारी चीज़ें उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हिमालयन ब्लंडर में। बट इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया था इस बुक पे और इवन यहाँ पर वो पब्लिश भी नहीं हो पाई थी। जॉन डाल्वी ने इस बुक को पब्लिश करवाया यूके से और फिर बाद में इंडिया में वो बहुत सालों बाद इंडिया में आई। तो जॉन डाल्वी ने उसमें सारी चीज़ें ये बताई थी कि किस तरीके से मिलिट्री अनप्रिपेयर्ड थी बिल्कुल बिकॉज ऑफ लीडरशिप जिन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, जैसे फॉरवर्ड पॉलिसी जो हमारे पीएम का था जिसमें ये कहा गया कि छोटे छोटे पोस्ट लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बट उस टाइम पे मिलिट्री ये बोलती थी, इंडियन आर्मी का ये रिकमेंडेशन था कि अगर हम छोटे पोस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि चीन अगर एक साथ ग्रुप में आया तो वो अटैक करेगा और छोटे पोस्ट को तहस नहस कर देगा। और हुआ भी ऐसा ही, चाइना आर्मी की बात नहीं सुनी गई और पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस पूरे सिचुएशन को वर्स्ट से वर्स्ट कर दिया और अल्टीमेटली इंडिया को यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस देखना पड़ा। 1967 में इंडिया ने ज़रूर काफ़ी टेरिटरीज को वापस से रिकवर करने की कोशिश की थी। बात की जाए 1967 के बाद के सिचुएशन की, 1967 के बाद इंडिया ने काफ़ी कोशिश की है चाइना के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए। कई सारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने वहाँ पर विजिट किया, जिसमें प्रोमिनेंट अगर हम बात कर रहे हैं हमारे टोटल 4 प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर विजिट कर चुके हैं, जिसमें 1954 की तो हमने बात कर ही ली है, पीएम नेहरू की। 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पेड अ विजिट टू चाइना। राजीव गांधी signed 2 important documents. One was JWG and the other was JEG. JWG बोले तो Joint Working Group and Joint Economic Group. जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जहाँ तक बात की जाए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप था कि किस तरीके से एमिकेबली रेजोल्यूशन एक लाया जाए, LAC को कैसे किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए इशू को, उसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था कि म्यूचुअल कंसेंसस बने इस पर। वेराज जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप जो बनाया गया था वो इकोनॉमिक रिलेशंस यानी बाइलेटरल जो हमारा रिलेशन है इन टर्म्स विद इकोनॉमी उसको किस तरीके से एनहांस किया जाए। तो इन 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन को साइन किया था 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने। इसके बाद अगर हम देखें तो 1993 में हमारे पीएम नरसिम्हा राव चीन गए थे और उन्होंने भी वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया था। पीएम नरसिम्हा राव ने agreement on maintenance of peace and tranquility साइन किया था। agreement on maintenance of peace and tranquility across the borders। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया कि किस तरीके से रेजोल्यूशन मिल सके, उसके लिए एक और एफर्ट। इसके बाद 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे। 5-6 दिन तक उन्होंने चाइना में अलग अलग बड़े बड़े लीडर से, ऑलमोस्ट सारी ही टॉप लीडरशिप के साथ उन्होंने बात किया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया जिसको कहा गया द डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशन एंड
comprehensive cooperation. डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशनशिप एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन। इस डिक्लेरेशन के थ्रू पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कोशिश की थी कि किस तरीके से रिलेशंस को न्यूट्रलाइज किया जाए और दोनों ही कंट्री एक सेम पेज पर आकर डिस्कशन कर सकें, बाइलेटरल टाइज को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए। अब इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम देखें तो चीन उस टाइम तक हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगा था, बट इंडिया का उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग इतना डेवलप्ड नहीं था कि हम वहाँ पर चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें। इवन आफ्टर दिस 2003 के बाद भी 2008 में हमारे पीएम मनमोहन सिंह ने चीन विज़िट किया था। 2008 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिटेड चाइना और इसमें भी बाइलेटरल टाइज को किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर जोर दिया गया था। बट इश्यूज़ जो हम लोग कहें पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो था वो आज भी वही हैं। LAC का रेजोल्यूशन अब तक नहीं हुआ है, हम 1 इंच भी ज़मीन अपनी नहीं छोड़ सकते। चीन जिसने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, अगर वो पीछे हटे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये इशू अभी तो बना रहेगा। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि किस स्टेट का कितना एरिया या कितना बॉर्डर जो है वो चीन के साथ लगा हुआ है। इंडिया के 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी इंडिया और चीन के बॉर्डर में आते हैं, जिसमें अगर हम क्रोनोलॉजी में देखें इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे छोटा बॉर्डर हिमाचल प्रदेश शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश शेयर्स अप्रॉक्स 200 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर्स विद चाइना, वेयर एज सिक्किम शेयर्स अप्रॉक्स 220 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर। इसके बाद आता है उत्तराखंड का नंबर। उत्तराखंड शेयर्स अप्रॉक्स 345 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर्स, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, which shares approx 1130 kilometers, and last सबसे बड़ा बॉर्डर जो शेयर करता है वो एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, which shares approx 1600 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद चाइना। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर या टू बी प्रिसाइज 3488 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है इंडिया और चाइना का, जो पूरे का पूरा डिस्प्यूटेड है, जिसको हम लोग एक एंड पर जिसको हम पूरा LAC बोल रहे हैं। और ये आर्डक जॉनसन लाइन की मैकार्टे मैकडोनल्ड लाइन जिसको चीन बोल रहा है और आर्डक जॉनसन जिसको हम फॉलो करते हैं, और ईस्ट की तरफ अगर हम चले जाएं तो मैकमोहन लाइन हमारी तरफ से है, चीन जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये 3488 किलोमीटर का लाइन डिस्प्यूटेड है और कोशिश ये रहती है गवर्नमेंट की कि बहुत जल्द इसको रिजॉल्व किया जाए। बट अगर चीन आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, चीन अगर हमसे पीसफुली बात करना चाहता है तो इंडिया उसको भी वेलकम करता है, और अगर वो मिलिट्री के हेल्प के साथ मिलिट्री को अगर लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है तो इंडिया भी उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है। हम लोग कहीं पर भी आज के टाइम पे चीन से पीछे नहीं हैं, ये चीज़ हम सबको समझनी होगी। और जहाँ तक हो सके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और नॉनदलेस हम सब एक कैंपेन का हिस्सा हैं आज के टाइम पे, दैट इज़ बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, क्योंकि जिस दिन हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन या उसके यूसेज को कम करना शुरू किया, उसी दिन से चीन को कहीं ना कहीं इसका हिट बहुत तगड़ा लगेगा, और हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ये फंडा बहुत क्लियर है। आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं और हम सबको उसमें सहभागीदार बनना पड़ेगा, और ये इश्यूज़ जितना जल्दी ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं उतना ही बढ़िया है हम सब के लिए। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो सीरीज़ समझ आई होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने अक्रॉस 3488 किलोमीटर के जितने डिस्प्यूट्स थे, लद्दाख की बात की जाए चाहे बात की जाए अरुणाचल तक, हमने सारे पार्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव में तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की ही हैं, और एज एन इंडियन सिटीज़न हमें इस इशू के बारे में पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। So I hope you enjoyed this video. With this, we'll close our session for today.
We will meet in the next video with a new topic. Till then, have a good day, stay safe, bye bye, take care.